Students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths teacher from Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. We are going to discuss about irrational numbers. Today we are going to discuss about irrational number. What is irrational number? Irrational numbers divided in two parts. First is rational number, and second is irrational number. Okay. Rational numbers it means a ratio. Okay. Rational numbers can be represented as p by q. रेशनल नंबर हमेशा जो है वो रेशियो के फॉर्म में होगा, जैसे p by q के फॉर्म में. एंड इरेशनल नंबर cannot be represented in the form p by q. Cannot be represented in the form p by q. Irrational it means irrational मतलब रेशियो नहीं, नॉट रेशियो मतलब cannot be, irrational numbers cannot be represented in the form p by q, जबकि rational number present in the form p by q. Okay. Every rational numbers can be expressed as in डेसिमल फॉर्म. प्रत्येक रेशनल नंबर्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके. सो रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग decimals and non-terminating decimals and repeating decimals. Terminating decimals and repeating decimals are called rational numbers. Okay. And what is irrational number? So irrational number is non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating decimals are called irrational. So non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers. Non-terminating and non-repeating decimals are known as irrational numbers. मतलब कि ना तो वो टर्मिनेट करे और ना पॉइंट के 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद वो रिपीट करे, ना तो रिपीट करे ना टर्मिनेट करे. ये दोनों को छोड़कर बाकी जो भी होगा सारे इरेशनल नंबर होंगे. जैसे 1.001 0001 00001, तो ये नंबर्स दैट आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग आफ्टर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर जाए, मतलब लास्ट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे. या फिर रेपिटिंग डेसिमल्स, इट मीन्स पॉइंट के 2 डिजिट 3 डिजिट को बार बार रिपीट करता हो,
तो ये जो नंबर्स है हमारे पास 1.001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर्स ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना रैप्टिंग है. सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रैप्टिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. ओके. m is a positive integer which is not a perfect square, which is not a perfect square. In root m is irrational. Root m is irrational. m is a positive integer. m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है which is not a perfect square. Perfect square it means 4, 9, 16, 25. That's because if root under 16, a square root for 16. So 16 is a perfect square, it gives 4 and 4 is a rational number. So this is not a irrational number, but root 2, root 3, root 5, root 6, root 7, dot 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 etc. all are irrational numbers because 2, 3, 5, 6, 7 do not a perfect square. Okay, so root 2, root 3, root 5, root 6, root 7 are irrational numbers, but root 16, root 9, root 25 is not a irrational number. This is a rational number. Okay. M is a positive integer. Positive integers not a perfect cube, which is not a perfect cube, then q roots of m is irrational. Okay. m is a positive integer. m एक positive integer which is not a perfect cube. Perfect cube it means q roots of 27. q roots of 27 gives 3. So this is not a rational number. Okay, this is a rational number. Okay, so m is a positive integer which is not a perfect cube, then q roots of m is irrational, such as q roots of 2, q roots of 3, q roots of 4, all are an irrational numbers. Okay, so 22 by 7 is irrational, whereas pi is an irrational number. Okay, so theorem 1 related to an irrational number. P be a prime number. Let P be a prime number and A be a positive integer and A be a positive integer. If it divides a square, then so that divides A. Divide. Students, theorem number 1 कि let P be a prime number. P be a prime number and A be a positive integer. A be a positive integer. If P divides A square, अगर P A square को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा. अगर P एक प्राइम नंबर है, इस थ्योरम का मतलब है कि if P
यदि p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तब यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, चलिए। सो we know that from the fundamental theorem of arithmetic, every composite numbers can be expressed as the product of primes. Okay, every composite numbers are expressed as the product of prime numbers, and these prime factors are unique. Okay, so a be a positive integer, it means a is a composite number. So composite number, so we write कि a equal to p1 into p2 into p3 डॉट डॉट डॉट। a जो है कंपोजिट नंबर है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट डॉट। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू वी राइट के p1 p2 p3 डॉट 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 इंटू p1 p2 p3 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो दिस इम्प्लाई कि a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर अप टू pn। सो a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn। ओके, कि a एक कंपोजिट नंबर है तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने a इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pn, तो p1 p2 p3 आर द प्राइम नंबर्स। ओके, सो a स्क्वायर इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn इंटू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो a स्क्वायर इक्वल टू वी राइट कि a स्क्वायर इक्वल टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर डॉट डॉट pn स्क्वायर। Okay, so now p divides a square, p divides a square, तो p divides a square, it means the a square में p से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी p किसी न किसी को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, या तो p1 को कैंसिल करे या p2 को या p3 को या p डॉट डॉट p4 p5 किसी को भी, किसी एक को ये क्या करेगा, कैंसिल करेगा। क्यों? क्योंकि p डिवाइड्स a स्क्वायर है। p डिवाइड्स, जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो इस साइड में भी p किसी न किसी को कैंसिल करेगा। इसका मतलब है कि p मस्ट इज वन ऑफ द p1 p2 p3 डॉट 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 pn, यानी कि p इनमें से ही कोई एक नंबर है। जब इसमें से कोई इक्वल होगा p के तभी तो p इसका p कैंसिल होगा। तो इट मीन्स कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई p, यानी p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि p p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डॉट डॉट pn स्क्वायर में से किसी एक नंबर को काटेगा। इसका मतलब है कि एक नंबर को कैंसिल करेगा। और जब अगर एक नंबर को कैंसिल करता है इसका मतलब है कि इनमें से ही कोई एक नंबर p है, इनमें से ही कोई एक नंबर p के इक्वल है। इसका मतलब है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, so p1 p2 p3 डॉट 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 pn is the factors of a. Okay, so this is the factors of a, so then it is proved that कि p divides a is the prime factors of a स्क्वायर। इसका मतलब है क्या कि p, it means p is one of p1 p2 p3 डॉट 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 pn। कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब है
कि P1 P2 P3 डॉट 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 Pn में से भी किसी एक को P क्या करेगा, कैंसिल करेगा। और जब इसमें से अगर ये कैंसिल किसी एक को करता है, इसका मतलब है कि P1 से लेके Pn तक में कोई भी एक ऐसा नंबर हो जो कि P के इक्वल है। इसका मतलब है कि P इनमें से ही कोई एक नंबर है। So P is one of the P1 P2 P3 dot 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 Pn. So P divides A. P divides A. और जब इनमें से कोई एक नंबर P है तो P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट कि रूट 2 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर, इरेशनल्स। तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए जो मेथड का हम लोग यूज करेंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड है। प्रूव दैट कि रूट 2 इज इरेशनल। तो वी नो दैट कि रूट 2 इज इरेशनल। ओके, सो इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम लोग कहेंगे कि रूट 2 इज रेशनल, रूट 2 इज रेशनल। इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मान लेते हैं कि लेट रूट 2 इज रेशनल। इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, संभव हो, तो मान लेते हैं कि रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। एंड लेट its simplest form be a by b। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a by b के फॉर्म में, where a and b, where a and b are integers and b do not equal to let root 2 is rational and its simplest form be a by b। और ये जो है a by b के simplest form में है। simplest form it means no common having no common factor other than 1 के अलावा कोई और common factor नहीं है। where a and b are integers, यहाँ पर a और b क्या है, integers है, b do not equal to। now यदि रूट 2 रेशनल होगा तो रूट 2 का फॉर्म क्या होगा, a बाई बी के फॉर्म में होगा। ओके, रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी के सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां a और b क्या है, इंटीजर्स है, b डो नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर। सो 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, इट मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब है कि जब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि a स्क्वायर भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो वी राइट कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, और जब 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो फ्रॉम थ्योरम 1, ओके, फ्रॉम थ्योरम 1 वी राइट कि 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स a, इट मीन्स 2 इज द फैक्टर्स ऑफ a, इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ a, इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ a। ओके, क्लियर। a इक्वल टू 2c, मान लेते हैं a जो है, a के जगह पर क्या है, 2c, क्योंकि a क्या है जब ये 2 से डिविजिबल होगा इसका मतलब a भी 2 से डिविजिबल होगा। चलो, फ्रॉम इंटीजर्स c, और फ्रॉम इंटीजर्स c, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a का वैल्यू 2c पुट कर देंगे, 2c का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 2 जा 4, so b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिविजल होगा, जब ये 2 से पूरी तरह डिविजल, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से 2 से डिविजिबल है, तो वी राइट कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, वी राइट 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब हम इधर से 2 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब LHS भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो बाय यूजिंग थ्योरम वी राइट कि 2 डिवाइड्स b, 2 divides b, 2 divides b square, it means 2 divides b, so 2 is the factor of b, 2 is the prime factor of b, 2 is the factor of b, so 2 is the factor of a and 2 is the factor of b, so 2 is the common factor of a and b, it means 2 is the common factor of a and b, thus 2 is the common factor of a and b, 2 a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि 2 कॉमन फैक्टर a और b का, a और b का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो हम लोग माने थे कि हमारा जो रेशनल नंबर्स है वो a बाई बी के सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में का मतलब है कि हैविंग कॉमन नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ जो है हमारे पास 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, जबकि होना चाहिए 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, सो वी से दैट कि √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, ओके, सो दैट कि 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ओके, इसे भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि लेट इफ पॉसिबल, लेट स्टार्ट सॉल्यूशन, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल लेट 2 प्लस √3 इज रेशनल, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 प्लस √3 इज रेशनल, सो 2 प्लस √3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a बाई b, where a and b are integers and b do not equal to 0, and a and b are the co-primes, no common factors other than 1, having a by b, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये a by b के सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, ओके, और b क्या है co-primes है, co-prime it means no common factor other than 1, where a and b are integers and b do not equal to 0, so we write कि 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 इक्वल टू a, कॉज कि 2 प्लस √3 इज रेशनल नंबर, लेट अस एज्यूम, ओके, सो वी राइट कि √3 इक्वल टू a बाई b माइनस 2, सो टेक एलसीएम b, a माइनस 2b, वेयर a and b आर इंटीजर्स, सो a minus 2b by v are rational, whereas कि √3 is irrational, जहाँ क्या है a minus 2b by v are the rational, where a and b are integer, तो ये रेशनल नंबर है और √3 हमारा क्या है a minus 2b by v are rational, so it means कि √3 is also रेशनल, √3 भी रेशनल नंबर होगा, जबकि ये सत्य नहीं है, क्योंकि वी नो दैट कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर कंट्राडिक्शन फैक्ट्स, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग।